নমস্কার। এই ত্রিপুরার মাটি বাংলার মাটি, বাঙালির মাটি। ত্রিপুরাতে জনজাতি মঙ্গোলিয়ানদের ইতিহাস ৫৫০ বছর। আজকে ত্রিপুরার মাটিতে দাঁড়িয়ে বাংলার খেয়ে বাংলার পরে বাংলার দয়ায়, বাঙালির দয়ায় আজকে এই জনজাতি নেতৃত্বগণ উঠে পড়ে লেগেছে, বাঙালিকে ছুবল মারছে। আপনারা চাইলেও প্রাকৃতিকভাবে ভৌগোলিক অবস্থানকে উপেক্ষা করতে পারেন না। আপনারা যেভাবে বারবার বাঙালিদেরকে কটাক্ষ করছেন, বাইরের বলে তারপর বাংলাদেশি বলে কুণ্ঠাসা করছেন, এই যে গো ব্যাক বাংলাদেশি স্লোগান তুলছেন, এটা চরম অন্যায়, চরম অপরাধ। সেটা আপনাদেরকে মানতে হবে। আপনারা বিভেদের রাজনীতি বন্ধ করুন। এটা হুঁশিয়ার, এটা ধমকি, এটা উপদেশ। আপনারা যা ভাবার ভেবে নিন। কারণ ইতিহাস যা প্রকৃতি প্রদত্ত, যা ঘটনা ঘটেছে, যা ঘটে চলেছে, প্রবাহমান কাল থেকে এটা চলে এসছে। আপনাদের কোনো অধিকার নেই। আজকে বাঙালির সরলতায়, উদারতায় আপনারা আজকে এখানে আছেন। আপনাদেরকে এই বাংলার অঞ্চলে বাঙালিরা আপনাদেরকে গ্রহণ করে নিয়েছেন সাদরে, যার বলে আজকে আপনারা এখানে আছেন। হ্যাঁ, আপনার জাতের অস্তিত্বের, সংস্কৃতির কথা বলছেন, তার জন্য কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে বাঙালিরা আপনাদেরকে সহযোগিতা করে চলছে। আপনারা এদের ভালোবাসা, এদের প্রতি আপনাদের কৃতজ্ঞতা আছে, কিন্তু এই কৃতজ্ঞতাটুকু স্বীকার করবেন। আপনারা ভালো করেই জানেন বাঙালির কৃতিত্ব, বাঙালির অবদান। আজকে এই যে ভারতবর্ষের মাটি, বাংলার মাটি, ভারতবর্ষের মাটি, বারবার আপনারা বাংলাদেশি বলে বাঙালিদেরকে যেভাবে অপদস্থ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন, সাধু সাবধান। আর নয়, এটা হুঁশিয়ার, এটা ধমকি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এই বিশৃঙ্খলাময় পরিস্থিতির জন্য যেভাবে বর্তমান জোট সরকার দায়ী, বিগত বামফ্রন্ট সরকার দায়ী, আজকে তাদের সমস্ত রাজনৈতিক দলনেতাদের বলতে চাইছি, এই যে আপনারা বিভেদের রাজনীতি যে শুরু করেছেন এবং জনজাতির লোকেদেরকে যেভাবে রাজনৈতিক দাবা খেলার গুটি হিসেবে ব্যবহার করছেন বারবার এই বাংলার ত্রিপুরার অঞ্চলে, সেটা কিন্তু অন্যায় এবং বারবার কোনো অন্যায়কে বরদাস্ত করেন না। আগামী প্রজন্ম সেটা বরদাস্ত করবে না। আমরা বাঙালি সবসময় বলতে চাইছি যে প্রাউড দর্শন ভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের যে পরিকল্পনা রয়েছে, সেটাকে বাস্তবায়ন করতে আপনারা সহযোগিতা করুন। কোনো দলের দলদাস না হয়ে একবার বাঙালির সঠিক অস্তিত্ব লড়াইয়ের জন্য আমরা বাঙালির দলে সামিল হন। আমি সমস্ত বাঙালি ভাই বোনদের প্রতি এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর প্রতিও আমি আহ্বান রাখছি, আপনারা আসুন, মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আমরা বাঙালির দলে যোগ দিন। আমি সবশেষে এই কথাই বলবো যে আমরা বাঙালি, আমরা কিন্তু বাঙালির অপমান সইছি না, সইব না। কোনো জনগোষ্ঠীর অপমান সইছি না, সইব না। তাই है बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत का योगदान, ये वो किताब है। और आजकल हम इसी किताब को पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारी किताबों के जरिए हम रिसर्च कर रहे हैं। इसके लेखक बांग्लादेश के ही हैं। इसके लेखक बांग्लादेश के सलाम आजाद हैं। ये किताब भारत के किसी लेखक ने या ऑथर ने नहीं लिखी है, बांग्लादेश के ही एक लेखक ने लिखी है। सलाम आजाद उनका नाम है। इस किताब में बांग्लादेश के निर्माण में भारत के योगदान को विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि भारत के लोगों ने बांग्लादेश के शरणार्थियों की किस तरह उस जमाने में मदद की थी और भारत की सरकार ने शरणार्थियों पर उस जमाने में कितना पैसा खर्च किया था। आपको बताते हैं कि इस किताब के पेज नंबर 145 पर क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इसमें लिखा है, शरणार्थियों तथा युद्ध पर भारत का कुल 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। भारत के पुनर्वास सचिव जीएस कहलो ने 5 अक्टूबर 1971 को जिनेवा में यूएनएचसीआर की कार्यकारी समिति के 22वें अधिवेशन में एक बयान दिया। भारत सरकार ने शरणार्थी सहायता के लिए 1971 में दिसंबर अंत तक के लिए 260 करोड़ का प्रावधान किया। इसमें 50 करोड़ की विदेशी सहायता का अनुमान था, पर अब शिविरों में
80 लाख शरणार्थियों के लिए अनुमान लगाया गया है कि अगले 6 महीनों में 419 करोड़ रुपए या 558 मिलियन अमेरिकी डॉलरों की जरूरत पड़ेगी। इसका कुल योग 418.789 करोड़ या कहें कि 418.8 करोड़ होगा, ऐसा उन्होंने इसमें कहा है। इस किताब में आगे जब चलेंगे तो पेज नंबर 175 पर यह भी लिखा गया है कि भारत के लोगों ने किस तरह अपने भोजन की थाली बांग्लादेश के शरणार्थियों के साथ साझा की थी, वो भी आपको पढ़कर सुनाता हूं। बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम की राजनीतिक राजधानी अगर कोलकाता थी तो सैनिक राजधानी अगरतला थी। उस समय त्रिपुरा पूरी तरह एक राज्य नहीं था। ताजुद्दीन अहमद के अलावा आवामी लीग तथा मुजीबनगर सरकार के सदस्य और अधिकांश अन्य लोग त्रिपुरा के रास्ते भारत आए थे। त्रिपुरा जैसे छोटे और गरीब राज्य ने मुस्कुराते हुए लाखों शरणार्थियों को भोजन और शरण दी। यहां तक कि उन्होंने अपनी भात की थाली का भी साझा किया। 1971 में स्थानीय जनसंख्या 15,59,000 थी और शरणार्थियों की संख्या इस राज्य में 14,16,491 हो गई। सोचिए, राज्य की अपनी जनसंख्या है 15 लाख और शरणार्थियों की जनसंख्या है करीब 14.5 लाख। यहां 36 शिविर तथा 382 इकाइयां थी। शिविरों में 6,92,154 शरणार्थी थे, जबकि 1.5 लाख ने व्यक्तिगत व्यवस्था की थी। 3,89,620 शरणार्थी अपने रिश्तेदारों के साथ ठहरे। 350 डॉक्टरों तथा चिकित्सा कर्मियों ने दिन रात शरणार्थियों की सेवा की। उस समय क्या हालात थे, ये आपको ये किताब पढ़कर इसका एहसास होगा। ये ऐसा इतिहास है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। बांग्लादेश के निर्माण में भारत के सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है, लेकिन इस बलिदान की कीमत भारत आज भी शरणार्थियों और घुसपैठियों की समस्या के रूप में चुका रहा है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने अपनी सीमाओं पर यह बोर्ड लगवाया हो कि हे घुसपैठियों, आपका स्वागत है। देखिए, क्या आप चाहते हैं कि आपकी सीमाओं पर ऐसा बोर्ड लगा दिया जाए? ये बोर्ड हमने बनवाया है और अगर यही हालात रहे तो एक दिन भारत को अपनी सारी सीमाओं पर यह बोर्ड लगाना पड़ेगा जिसमें लिखा है घुसपैठियों का भारत में स्वागत है। घुसपैठियों की एंट्री को हर देश रोकता है क्योंकि घुसपैठियों को हमेशा देश के संसाधनों के अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि घुसपैठ अपने आप में एक तरह का आक्रमण है। इस दौर में आक्रमण सिर्फ टैंक, लड़ाकू विमानों और सेना के द्वारा नहीं होता। घुसपैठ भी आक्रमण का ही एक तरीका है। ये एक ऐसा हमला है जिसमें एक भी गोली नहीं चलती और इसके बावजूद विदेशी नागरिक देश के संसाधनों पर कब्जा जमा लेते हैं। इससे देश के असली नागरिकों का हक छीन लिया जाता है और देश की सुरक्षा कमजोर हो जाती है।